हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, यानी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो है कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर जो है अध्याय 5 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर समय जो है ये महत्वपूर्णता अपना बनाए रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। Define the flowing term. There is a flowing term is the most important. The first here virgin vegetation, second here flora, third here fauna, and fourth here ecosystem, fifth is a natural vegetation. There is a most important definition here. The first here virgin vegetation. The virgin vegetation is the most important point here. A natural vegetation refers to a plant, a community which has a grow naturally. There's a grow of naturally without human aid and has been to the left undisturbed by the human for a long time. This is called to the virgin vegetation. You know that? You understand what is a virgin vegetation? The virgin vegetation is only a few point grow naturally, grow or naturally without human aid and has been left undisturbed by a human for a long time. It's called virgin vegetation. And the next here, floras. Floras is a term is used for natural vegetation of particular region and period. There is a flora as a natural vegetation. The only one few word or remember you, natural vegetation is called flora. But fauna here is the third point is important. The fauna here, various species of animal or wildlife is termed as fauna. You know that few word only remember you, animal of wildlife. A species of animal of wildlife is called fauna. The next here, ecosystem. The ecosystem is the most important here. On the ecosystem is a life is a supporting system, is comprising there is a physical environment and non-living component like a climate, soil, rivers, etc. is along with all organisms live therein. There is an important point here, ecosystem. The ecosystem is mean to the over surrounding animal and non-living things are present here like a climate, soil, rivers, and etc. There is a most important ecosystem. And the next here, natural vegetation. The natural vegetation is referred here. They refer to the plant community which has a grow naturally without human aid and has been to left undisturbed by the human for a long time. There is a most important point. The same point as a virgin vegetation and natural vegetation is the same. Do not confuse here. The natural vegetation and virgin vegetation is the same here. यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये जो है परिभाषा करना है कुछ शब्दों को। देखिए, सबसे पहले तो हमारे वर्जन वनस्पति आती है जो कि कुवारी वनस्पति के रूप से में भी जाना जाता है। दूसरा है वनस्पति, तीसरा है जीव, चौथा है पारिस्थितिक तंत्र और पांचवा जो है प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिएगा तो ये क्वेश्चन अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो एग्जाम व्यू से जो है ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया भी है, तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ही आसान बना देगा और बहुत ही ज़रूरी बना देगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इसको नोट करके अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, जिससे एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो सको। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होता है हमेशा ही महत्वपूर्ण ही होता है, चाहे वो एग्ज़ाम के टाइम हो, चाहे ऐसे क्लास आप लोग को लग रहा हो। तो कहते हैं जितना त्रिपान सेंटर ने बना दिया है चैप्टर को, उतने ही क्वेश्चन कर लोगे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाहे वो हाउस टेस्ट हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, हर जगह ये महत्वपूर्णता अपना दर्शाएगा। तो देखिए, पहला अगर हम देखें कुवारी वनस्पति यानी जो है वर्जन वेजिटेशन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये होता है, कुवारी वनस्पति का मतलब यही होता है कि आप कोई भी वनस्पति है जिसमें इंसान का कोई इंटरफेयर ना हो, यानी इंसानों का हस्तक्षेप ना हो, वो स्वयं ही ग्रोथ करता हो। ठीक है, तो इसे कुवारी वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो ये साफ करता है कि प्राकृतिक वनस्पति एक पौधा समुदाय के संदर्भित करती है जो मानव सहायता के बिना ही स्वाभाविक रूप से बढ़ती है
और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा अप्रभावित छोड़े दी गई हो, उसे वर्जनीय वेजिटेशन कहा जाता है। यानी इसमें इंसानों का कोई इंटरफेयर ना हो और इंसानों के द्वारा कोई प्रभावित ना किया हो। तो ऐसे जो वनस्पति उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, इसे हम कुंवारी वनस्पति या वर्जन वेजिटेशन कहते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही आसान आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि बिना जो है इंसानों, ऐसे वनस्पति जो बिना इंसानों के हस्तक्षेप से स्वयं ही ग्रोथ करते हो, उसे ही जो है कुंवारी वनस्पति या वेजिटेशन जो वर्जन वेजिटेशन कहते हैं। दूसरे पॉइंट अगर हम बात करें तो वनस्पति वेजिटेशन, इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या काल की प्राकृतिक वनस्पति के लिए किया जाता है। यानी अगर वनस्पति से आप समझ गए होंगे कि इस वनस्पति का मतलब ही होता है कि पेड़ पौधा जो कोई भी काल में, कोई भी समय अवधि में जो है अपना ग्रोथ करता हो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता हो। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, जीव का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है। यानी जो हमारा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच जंतु कहा जाता है। यानी जो विभिन्नताएं प्रजातियों में दिखती है उसे ही हम जीव के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम अगर साधारण शब्दों में जानना चाहोगे तो साफ हो जाता है कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसी को हम इकोसिस्टम या पानी तंत्र कहते हैं। ये तो साधारण शब्दों में हो गया। अगर इसके हम टर्म देखें तो एक पारितंत्र एक जीव सहायक प्रणाली है जिसमें भौतिक वातावरण अथवा निर्जीव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदियाँ आदि के साथ साथ उसमें रहने वाले सभी जीव शामिल होती हैं। देखिए बात उतने ही कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा जो है थोड़ा साइंस टर्म पे आ गया, क्योंकि इकोलॉजी है तो साइंस में ही आता है, तो इसको जो है आप साइंस टर्म में ही आप याद कर लो। यहाँ पर साफ बताया गया कि उसमें रहने वाले सभी जीव शामिल होते हैं। यानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है पाउंड, यानी जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर जो है हर जीव जंतु पाई जाती है, तो वो जो है अच्छा इकोसिस्टम कहला सकता है, यानी पारितंत्र कहलाता है। जिसमें आपने देखा ही होगा कि वातावरण जो है निर्जीव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदियाँ आदि सभी सम्मिलित होते हैं, उसी को ही पारितंत्र कहते हैं। यानी वहाँ पर उस स्थान पे जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो बायोटिक हो, अबायोटिक हो, ठीक है, तो उसी को हम जो है पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बात इधर करें प्राकृतिक वनस्पति, तो मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूँ, प्राकृतिक वनस्पति हो चाहे आपका वर्जन वेजिटेशन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कुंवारी वनस्पति हो या प्राकृतिक वनस्पति हो, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। तो सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने समझाने की कोशिश किया है कि कभी कभी जो है नेचुरल वेजिटेशन आ जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति आता है, और कभी कभी वर्जन वेजिटेशन आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई वर्जन तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी था, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो प्राकृतिक वनस्पति पढ़ा था। तो भाई साहब आप सही सोच रहे हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का डेफिनेशन एक ही होगा, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, चाहे वर्जन वेजिटेशन हो या नेचुरल वेजिटेशन हो, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। इसलिए त्रिपाणी सेंटर ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर किया है, क्योंकि बच्चे कई बार कन्फ्यूज़न में आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों का अर्थ सेम है। देख लीजिए इसका भी परिभाषा प्राकृतिक वनस्पति का कि कैसे पौधे समुदाय के संदर्भ करता है जो मानव सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। अब देखिए उसमें भी था कि मानव के बिना हस्तक्षेप के जो है स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा जो है अप्रभावित छोड़ दिए जाते हैं। यानी लंबे समय तक मानव ने किसी तरह गतिविधियाँ उसमें न किया हो, इसी को ही हम जो नाम देते हैं प्राकृतिक वनस्पति या वर्जन वेजिटेशन यानी कुंवारी वनस्पति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डेफिनेशन था जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। मैंने जितना कोशिश देखा है और समझने की कोशिश करवाया है आपको, इसमें साफ हुआ है कि कोई मुश्किल शब्द नहीं है, ये सब बहुत ही आसान है और आप कोई भी बच्चे हो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हो, उसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो जितना हो सके याद कीजिए, एग्ज़ाम को जो है तैयारी कीजिए, तभी आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में क्वेश्चन आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने में जो है त्रिपाणी सेंटर को हेल्प कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, इसी से ही जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा।